అయింది రావడంతో. కృతజ్ఞతలు. తక్కువ సమయంలో మీకు ఆహ్వాన్ని చెప్పినందుకు, ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినందుకు. ఈనాటి ఈ ప్రెస్ మీట్కి గౌరవ గుర్దీప్ సప్పల్ గారు సిడబ్ల్యూసి పర్మనెంట్ ఇన్వైటీ, ఏఐసిసి మన హెడ్ క్వార్టర్స్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ఛార్జు, కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆఫీస్ వ్యవహారాలు కూడా వారు పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు. వారి వాళ్ళు ప్రత్యేకించి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కమిటీ ఆఫీస్కి రావడం గౌరవ గుర్దీప్ సప్పల్ గారికి ఆహ్వానం పలుకుతూ, వారితోటి మిస్ పౌల్ గారు, ఏఐసిసి మీడియా అబ్జర్వర్ గారు, టిపిసిసి మీడియా కమిటీ చైర్మన్ సామా రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే నాతోటి మల్రెడ్డి రామరెడ్డి గారు, రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు, వజీర్ ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, మీడియా మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ఇవాళ దేశంలో జరుగుతున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో గౌరవ రాహుల్ గాంధీ గారు మొన్న జాతీయ స్థాయిలో సామాజిక న్యాయాలు మాట్లాడుతూ, దేశంలో ఉన్న 90% జనాభాకి దేశ వనరులు అందట్లేదు, ఎక్స్రే అంటే జరిగి తీరాల్సిందే, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, దేశ సంపద ఎవరి చేతిలో ఉంది, జనగణన ఎందుకు జరగాలి, కులగణన ఎందుకు అందులో ఇంక్లూడ్ కావాలి, బీజేపీ పార్టీ రేపు తిరిగి అధికారానికి వచ్చినప్పుడు రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేసే కుట్రపూరితగా కార్యక్రమాలు తలబెడుతుందనేది గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు 2 రోజుల క్రితం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడడం జరిగినది. బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఎక్కడ కూడా మేము రిజర్వేషన్స్కి వ్యతిరేకం కాదు అంటారు, కానీ రిజర్వేషన్స్ రద్దు చెయ్యబోము అని మాత్రం చెప్పట్లే. అందుకే నేను ఇంకెక్కువ డీటెయిల్స్ వెళ్లకుండా ముందుగా భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కులని, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు చెందాల్సిన రిజర్వేషన్స్ని బీజేపీ పార్టీ క్రమక్రమంగా రద్దు చేస్తున్నది. మొన్నటి మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో, లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్స్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ లేకుండానే ఎన్నికలు జరిపింది. సో దీనిపైన గౌరవ పెద్దలు గుర్దీప్ సప్పల్ గారు జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహకర్త, జాతీయ స్థాయిలో ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలే కాకుండా వారు చాలా అతి దగ్గరగా రాహుల్ గాంధీ గారితో, సోనియా గాంధీ గారితో కూడా పనిచేస్తారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వారి గురించి ఒక మాట చెప్పి నేను వారికి ఇస్తాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క పాత్ర చాలా చరిత్రాత్మకం. వారు అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఓఎస్డీగా ఉండేది. రాజ్యసభలో బిల్ పాస్ కావడంలో వారి యొక్క వ్యూహంతోనే పనిచేసింది. నేను సందీప్ దీక్షిత్ గారు వారు కలిసి పనిచేసినాం. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకి మిత్రుడు, నా సోదరుడు గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క అవినాభావ సంబంధం, వారి పాత్ర, నేను ఒక భవిష్యత్తులో బుక్ రాస్తే మాత్రం వారి యొక్క పాత్ర గురించి రాస్తాను. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బిల్లు రాజ్యసభలో పాస్ చేయించడంలో వారి యొక్క పాత్ర గురించి. ధన్యవాద్, बहुत बहुत धन्यवाद भैया. आप आने का, आप फिर आप I'll give it to pass it on to you. थैंक यू मधु जी. आप तेलुगु में समझ लिया होगा. मैं समझ गया आपने क्या बोला. जी, हिस्ट्री से जुड़ा है हमारी आपकी. जी, थैंक यू आप सबके यहाँ आने के लिए. ये हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में? हिंदी. ये जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव एक बुक के लिए है. वो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्योंकि ये चुनाव 2 आइडियोलॉजीज के बीच में है. एक आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और एक आरएसएस की आइडियोलॉजी. और हम पूरा देश अब जान रहा है कि मोदी जी 400 पार की डिमांड क्यों कर रहे थे पब्लिक से. क्योंकि हमने नहीं बोला, वो रोज बोलते हैं कि गलत बोल रही है कांग्रेस, लेकिन ये कांग्रेस ने कभी नहीं बोला था. ये उनके अपने नेताओं ने, उनके अपने 6 टाइम एमपी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर अनंत हेगड़े ने सबसे पहले इस सीक्रेट को आउट किया कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं.
उसके बाद उनके और लीडर्स ज्योति मिर्धा हैं और हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने इस देश का संविधान बदलने का जो अपना टारगेट रखा है उस टारगेट को पूरा करना है। और पीएम रोज बोलते हैं नहीं हमको नहीं करना है, वो रोज ये सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी का विश्वास इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी आरएसएस का इतिहास और बीजेपी आरएसएस के अपने काम, ये तीनों बात इस बात का सबूत देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। जनवरी 1, 1993 को आरएसएस ने एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया था। उस व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटी हिंदू है और उसको वो बदलना चाहते हैं। उनका ये कहना था, एंड आई विल रीड आउट, वी विल हैव टू थिंक अफ्रेश about our economic policy, judicial and administrative structure only after nullifying the present constitution. बीजेपी आरएसएस ने इस व्हाइट पेपर से आज तक अपने को अलग नहीं किया। 93 में ही आरएसएस के टॉप लीडर राजेंद्र सिंह, जो आरएसएस के हायरार्की में नंबर 2 पे रहे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, आर्टिकल लिखा था, अपने नाम से लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस कंट्री में फ्यूचर में हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आरएसएस के राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में जनवरी 1993 में लिखा था। उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे मुरली मनोहर जोशी। 10 दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से देखने की जरूरत है, इस पे पुनर्विचार करने की, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो बीजेपी आरएसएस ने कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जस्टिस वेंकटचलैया के अंडर में बनाया था। उस कमीशन ने पूरा काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए रिपोर्ट दी थी और ये पूरा देश शुक्रगुजार है, थैंकफुल है तब के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के, जिन्होंने उस रिपोर्ट को रिसीव करने से मना कर दिया था और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई भी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति रहते हुए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बीजेपी का ये जो एजेंडा है, आरएसएस का ये एजेंडा है, ये पहली बार अनंत हेगड़े ने नहीं बोला, पहली बार किसी ज्योति मिर्धा ने नहीं बोला, ये लगातार बीजेपी इस बात को और आरएसएस इस बात को कहती आई है कि उनको ये संविधान चेंज करना है। उनको प्रॉब्लम है इस संविधान से, 5 प्रॉब्लम है। एक, ये संविधान सबको बराबर मानता है। आरएसएस फिलॉसफी मानती है कि देश में सब नागरिक बराबर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। उनके लिए कुछ नागरिक कम है, कुछ ज्यादा है। हमारा संविधान कहता है कि एवरीवन इज इक्वल, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, इसको वो नहीं मानते। दूसरी बात, राइट्स के लिए रिजर्वेशन ये संविधान देता है। तीसरी बात, रिजर्वेशन और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार ये संविधान देता है। गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, कोई कास्ट हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई एरिया हो, कोई लैंग्वेज हो, सबके पास एक वोट है जिससे कि वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आरएसएस के फेवर, कभी इसके फेवर में नहीं थी। चौथी बात, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और 5वां, राइट टू प्रोटेस्ट। हमने देखा पिछले कुछ सालों में किस तरह से राइट टू प्रोटेस्ट को बीजेपी ने किल किया, सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किल किया। और इसलिए नहीं किल किया कि वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 25 साल का वक्त था। इस 25 साल में 3 बड़े नेता थे आरएसएस के हिंदू महासभा के, डॉक्टर हेगड़ेवार, गुरु गोलवलकर और विनायक सावरकर। तीनों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगर आप आरएसएस के किसी बुक स्टॉल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें इन तीनों उनके लीडर्स की लिखी हुई मिलेगी, लेकिन एक भी किताब में एक भी लाइन इक्वालिटी के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन रिजर्वेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन प्रोटेस्ट के राइट के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन सबको वोटिंग राइट के बारे में नहीं है। इसलिए आरएसएस शुरू से इसके खिलाफ था कि भारत का संविधान जो बना है वो उनको पसंद नहीं था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ था।
अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम मनाते हैं 26 नवंबर को। 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर के अपने मैगजीन में आरएसएस लिखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्वीकार नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति से मेल नहीं खाता, ये मनुस्मृति के अगेंस्ट है। और आज ये चैलेंज करते हैं, आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं, आज मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम ये चैलेंज करते हैं उनको कि वो अपने 1950 के बयान को गलत ठहराएं और ये बताएं देश को कि आने वाले समय में कभी भी वो मनुस्मृति के आधार पर जो बात कहते रहे कि हमारा संविधान होना चाहिए, उस बात से अपने को दूर करते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं बदलेंगे और मनुस्मृति के रास्ते पे वो कभी नहीं जाएंगे। अगर वो हम ये चैलेंज करते हैं, अगर वो इतना सोचते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो आज देश को प्रधानमंत्री और आरएसएस के मोहन भागवत इस बात को कहें देश के सामने, क्योंकि 1950 में 3 दिन बाद संविधान बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मनु के लॉ वो इस देश में स्पार्टा से और पर्शिया के लॉ से पुराने हैं और उन्होंने ये लिखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदेशी है और मनु के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप गूगल करेंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन गूगल पे आज भी उपलब्ध है। ऑर्गेनाइजर किसका न्यूज़पेपर है आप सब जानते हैं, ऑर्गेनाइजर किसकी बात करता है ये आप सब जानते हैं। तो हमारे चैलेंज है कि जो लगातार बीजेपी आज ये बात छुपा रही है, प्रधानमंत्री और अमित शाह और मोहन भागवत लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारे संविधान बदलने में नीयत नहीं है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन उन्होंने क्यों बनाया था। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने व्हाइट पेपर क्यों लिखा था कि संविधान बदलना चाहिए। उनके अध्यक्ष ने, मुरली मनोहर जोशी ने इस बात को क्यों कहा था। राजेंद्र सिंह ने इस बात के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल क्यों लिखा था। राम मोहन रॉय ने 2016 में आर्टिकल क्यों लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। ये लगातार एक प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत आरएसएस धीरे धीरे शक्ति लेना चाहती है। एक एफर्ट उनका राष्ट्रपति के आर नारायणन ने विफल कर दिया था। अब वो डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद रास्ते में आएगा, इसलिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं कि इतनी ताकत मिल जाए कि कोई राष्ट्रपति, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके इस काम को ना रोक पाए। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं। दूसरी बात वो है आरक्षण की। आरक्षण की जहां तक बात है, 3 चीजें इसमें शामिल हैं। आरक्षण को बैकडोर से पिछले कुछ सालों में खत्म करने की कोशिश हुई। आरक्षण का फायदा कब है? आरक्षण का फायदा तब है जब सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी में जब आरक्षण मिलता है तो एक बड़े स्केल पर इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी का मिडिल क्लास तैयार हुआ। वो मिडिल क्लास जो पढ़ा लिखा है, वो मिडिल क्लास जो सक्षम है, वो मिडिल क्लास जो आरक्षण लेके आगे बढ़ा है। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर लगभग नील एंट्री हुई है। 7 लाख गवर्नमेंट जॉब्स केवल दी गई है 10 साल के अंदर, 7 लाख। जब आप गवर्नमेंट जॉब ही बंद कर देंगे तो आरक्षण बैकडोर से अपने आप बंद हो जाएगा। जब आप सेना के अंदर रेगुलर भर्ती बंद कर देंगे तो आरक्षण अपने आप गायब हो जाएगा। अग्निवीर में आरक्षण नहीं है, सेना में अब किसी लेवल पे आरक्षण नहीं होता है। अगर आप बैंकों को प्राइवेट कर देते हैं सारे, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आप सारे पीएसयूज को बेच देते हैं तो आरक्षण अपने आप गायब हो जाता है। अगर आप रेलवेज को, पोर्ट्स को, अगर आप सबको प्राइवेटाइज कर देंगे तो आरक्षण अपने आप गायब हो जाएगा। अगर आप जॉब्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बना देंगे, रेगुलर जॉब्स खत्म करके, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हम सब जानते हैं आरक्षण नहीं होता है, तो आरक्षण बैकडोर से मोदी सरकार ने 10 साल में खत्म करने की कोशिश की है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मैनिफेस्टो में यह बात कही है हमने कि हम आएंगे, नंबर 1 हम सरकारी पद भरेंगे, 30 लाख गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हम भरेंगे और पीएसयूज में भरेंगे। नंबर 2, इस देश में कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती पे बैन लगाएंगे, रेगुलर भर्ती करेंगे जिसके अंदर की जॉब्स रिजर्वेशन के बेस पे मिलनी चाहिए। नंबर 3, हम पीएसयूज को दोबारा से खड़ा करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है ताकि पीएसयूज के थ्रू रिजर्वेशन की यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। और चौथा, हम आर्मी के अंदर दोबारा से पहले वाला सिस्टम लाएंगे। अग्निवीर को हम रिजेक्ट करते हैं। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है और वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। वो मोदी जी के पीएम बनने से पहले हम दुनिया के दूसरे नंबर की आर्मी थे। हम न्यूक्लियर पावर हैं, उसमें मोदी जी का हाथ नहीं है। हम स्पेस पावर हैं, उसमें मोदी जी का हाथ नहीं है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर हैं,
उसमें मोदी जी का हाथ नहीं है। हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, दूसरे नंबर की, और उस आर्मी को जिस रास्ते पे चलकर हमने बनाया उसको हम दोबारा से वापस लाएंगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, जो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं, खड़गे जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे। कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी और मोदी जी, इनके जबान पे ताला है। ये झूठ फैला रहे हैं देश के अंदर कि कास्ट सेंसस होगा तो आपके घर छीन लिए जाएंगे। ये झूठ फैला रहे हैं देश के अंदर कि कास्ट सेंसस होगा तो एक्सरे आपके घर के अंदर प्रॉपर्टी का होगा, प्रॉपर्टी छीन लेंगे। कास्ट सेंसस की बात आज हम क्यों कर रहे हैं? एक तो वजह है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमको डेटा चाहिए, लेकिन एक टेक्निकल वजह भी इस देश के अंदर है। 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उस जजमेंट में यह कहा गया था कि ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। 3 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी। उन 3 शर्तों में एक शर्त यह थी कि अगर रिजर्वेशन चाहिए तो डेटा होना चाहिए, इंपीरिकल डेटा होना चाहिए। 2010 में जब यह जजमेंट आया था तो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पे डिबेट हुई थी। उस डिबेट में कांग्रेस पार्टी ने डिबेट की थी और बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज, जो उस समय एलओपी थी, नेता विपक्ष थी, उन्होंने कहा था कि अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो रिजर्वेशन पे खतरा आ जाएगा। ये बीजेपी का उस समय बयान था। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब ने, जो कि लीडर ऑफ हाउस थे लोकसभा के, यूपीए में थे, हमारे सम्मानित नेता जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने सारी पार्टीज को चिट्ठी लिखी थी कि कास्ट सेंसस पे आपका क्या विचार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। अगर हम अब डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सारी पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी ने कास्ट सेंसस के फेवर में चिट्ठी यूपीए सरकार को लिखी, प्रणब मुखर्जी साहब को लिखी। इसलिए हमने उस समय फिर, क्योंकि सेंसस शुरू हो चुका था, तो सेंसस के साथ हमने कास्ट सर्वे किया पूरे देश में। यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में किया। बीजेपी सरकार जैसे ही 14 में आई, उन्होंने वो जो सर्वे पूरा हो चुका था कास्ट का, उसका डेटा दबा दिया। अलग अलग बहाने करने लगे। पहले बोला हम एक कमीशन बना रहे हैं, हाई पावर्ड कमीशन, और हाई पावर कमीशन उन्होंने 2015 में अपॉइंट किया, जो कि कास्ट सेंसस के ऊपर फैसला करेगा। अनफॉर्चुनेटली, या शैतानी बोल लीजिए, उस कमीशन के बाकी मेंबर कभी अपॉइंट ही नहीं किए और उस कमीशन की एक भी मीटिंग नहीं हुई कास्ट सेंसस के ऊपर, और वो कमीशन साइड में कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने बहाना किया कि जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए हम इस सर्वे को पब्लिक नहीं कर सकते। जब कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में इसको उठाया, स्टैंडिंग कमेटी में उठाया, तो गवर्नमेंट को सच बोलना पड़ा कि 98.87% डेटा सही था। 98.87% डेटा सही होने के बावजूद कास्ट सेंसस को इन्होंने दबा दिया। 2018 में जब चुनाव आने वाले थे, तो राजनाथ सिंह जी, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि हमारी सरकार 19 में आएगी तो हम कास्ट सेंसस करेंगे। 19 में आए तो कास्ट सेंसस को भूल गए। और भूलने का नुकसान क्या हुआ? जब मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात आई, जब महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात आई, जब यूपी में लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात आई, तो हाई कोर्ट्स ने ओबीसी रिजर्वेशन को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि हमने 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इंपीरिकल डेटा की डिमांड रखी थी, ट्रिपल टेस्ट दिया था, और चूंकि 10 साल बीत गए, इस बीच में केंद्र सरकार ने कास्ट का डेटा इकट्ठा नहीं किया, इसलिए यूपी में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन छीन लिया गया और कहा गया कि लोकल बॉडीज में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होगा। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे किया, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 2010 में कि ट्रिपल टेस्ट चाहिए, कास्ट का डेटा चाहिए। अगर कास्ट का डेटा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में ओबीसी रिजर्वेशन जैसे लोकल बॉडीज में गया है, वैसे आने वाले दिनों में नौकरियों में भी जाएगा। आने वाले दिनों में एससी एसटी रिजर्वेशन पे भी यही बात आएगी, क्योंकि एससी एसटी के अंदर उस ट्रिपल टेस्ट की दूसरी डिमांड, जिसमें कहा गया कि नीड आइडेंटिफाई की जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट है कि नहीं, जितना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, यह डिमांड एससी एसटी के बारे में भी है। नागराज का फैसला आया, नागराज केस का 2006 में, और 2010 में दूसरा फैसला आया। मोदी सरकार ने 10 साल
इस डायरेक्शन में काम नहीं किया, क्योंकि हिडन एजेंडा यह है कि अगर आप डेटा नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट के रास्ते से आने वाले दिनों में रिजर्वेशन के ऊपर बैन लग जाएगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कि हमने तो 10 साल पहले आपको कहा था डेटा, अब 15 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमने 2010 में बोला आपको, अब डेटा लीजिए, आपने डेटा नहीं लिया, इसलिए अब रिजर्वेशन के हम स्टे देते हैं। एक बार हाई कोर्ट दे चुकी हैं। आने वाले दिनों में रिजर्वेशन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एकदम क्लियर स्टैंड लिया है कि इस देश के अंदर कास्ट सेंसस होना है। इस देश में कास्ट सेंसस इसलिए होना है, ए, रिजर्वेशन बचाना है, और दूसरा पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी का कितना हिस्सा पावर स्ट्रक्चर में है। क्योंकि अगर आप पावर स्ट्रक्चर में अलग अलग कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे, वो कम्युनिटीज जो आज पढ़ लिख गई हैं, 75 साल पहले इस देश के संविधान ने जो फंडामेंटल राइट सबको दिए थे, उस फंडामेंटल राइट मिलने के बाद वो कम्युनिटीज के लोग जो कभी भी पढ़ाई नहीं किए थे, जो शिक्षा से दूर रखे गए थे, जो गरीब थे, और इसमें केवल SC ST OBC के गरीब नहीं आते हैं, 90% लोग उस समय देश के गरीब थे, तो अपर कास्ट के भी मेजॉरिटी लोग गरीब ही होंगे उस समय। वो तमाम लोग आज पढ़ लिख गए। उन कम्युनिटीज में बहुत बड़े लेवल पे शिक्षा आई है, मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, उनके एस्पिरेशंस हैं। अगर इस देश के अंदर उन तमाम कम्युनिटीज के पढ़े लिखे लोगों को, उन तमाम कम्युनिटीज के काबिल लोगों को, उन तमाम कम्युनिटीज के वो लोग जिनके अंदर अब एस्पिरेशन है लीड करने की, उनको अगर ये देश जगह नहीं देगा, तो हम इस देश में जो आने वाले वक्त में एक ऐसा समाज बना रहे होंगे जहां लोग काबिल तो होंगे लेकिन पावर स्ट्रक्चर में उनकी जगह नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी दूसरी ये डिमांड कर रही है कि रिजर्वेशन बचाने के लिए और SC ST OBC के लोगों को पावर स्ट्रक्चर में, पावर स्ट्रक्चर इन मीडिया, पावर स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी में, पावर स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में और पावर स्ट्रक्चर जुडिशरी में, चारों जगह रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। और हमारी सरकार अब आएगी, जो अब लग रहा है पूरे देश को, अब 400 पार की बात कोई नहीं कर रहा है। अब लोग कह रहे हैं एक अंडर करंट है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को खूब वोट पड़ रहा है, तो हमारी सरकार आने के बाद हम कास्ट सेंसस का वायदा इमीडिएटली निभाएंगे। जब हमारी यहां पे तेलंगाना में सरकार आई तो हमने तेलंगाना में भी फैसला लिया, जियो इशू हो चुका, ये पूरे देश के लिए भी हम लोग करेंगे। ये 2 इश्यूज के ऊपर कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आपसे बात करना चाहता था। और एक बात इससे अलग और जोड़ देता हूं। कल मैं देख रहा था INB मिनिस्टर हमारे देश के अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने एक जगह भाषण दिया कि कांग्रेस आएगी तो न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देगी। तो हमको लगा पहले तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि इतना हास्यास्पद है, लेकिन मैं आपकी मार्फत एक बार फिर इतिहास अनुराग ठाकुर जी को बताना चाहता हूं। इस देश को न्यूक्लियर पावर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और कैसे बनाया। 6 अगस्त 1945 को नागासाकी में और फिर हिरोशिमा में एटम बम गिराए गए। पूरे दुनिया ने देखा कि एटम बम की ताकत क्या होती है। उसके 1 महीने बाद, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब नेहरू जी देश के लोकप्रिय नेता अपने को साबित कर चुके थे, आजादी से पहले 1945 में नेहरू जी उस समय के दुनिया में मशहूर हो चुके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी भाभा को बुलाते हैं 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के 1 महीने बाद, और उनको कहते हैं हमारा देश आजाद होने वाला है और हमको एक मजबूत देश बनाना है, इसलिए आप आज से ही न्यूक्लियर प्लान पे काम कीजिए भारत के लिए। और 1945 में ही होमी भाभा इंडिया आ गए। इस स्टेप्स की वजह से, ये कितनी हिम्मत की बात थी, पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर पावर देख ली थी। और जवाहरलाल नेहरू जो लीड कर रहे थे आजादी का आंदोलन, वो जानते थे कि ये स्टैंड लेने पर हो सकता है अमेरिका खिलाफ हो जाता, हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और खिलाफ होती कि भारत तो बहुत मजबूत देश बनेगा, लेकिन भारत के हित में उन्होंने तमाम खतरे उठाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम 1945 में शुरू किया था। और 1948 में, 47 में हम आजाद हुए, 1948 में हमारा एटॉमिक कार्यक्रम शुरू हो गया था। 1974 तक हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर चुके थे, हमारा एक्सप्लोजन पोखरण 1 में हो गया था। और वाजपेयी जी ने जो किया, वो आते ही उन्होंने एटम बम नहीं बना लिया था जो टेस्ट हुआ है,
वो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने बनाए थे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना स्ट्रांग रहा और आज अनुराग ठाकुर देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देगी। इस देश में मैं फिर से एक बार बोलूंगा, हम दुनिया की दूसरे नंबर की फौज हैं। जब हम आजाद हुए थे हमारे यहां लगभग 90% लोग अनपढ़ थे और गरीब थे। हमारे यहां कुछ नहीं बनता था। हमारे यहां ना अनाज होता था अपने लिए, ना हमारे यहां कोई फैक्ट्रीज थी, ना हमारे हॉस्पिटल्स थे। ये नेहरू जी थे, उनके टाइम में एक गरीब मुल्क ने पीएसयूज के पीएसयूज खड़े किए। एक गरीब मुल्क ने पूरे देश में स्कूल कॉलेज बनाए। एक गरीब मुल्क ने हर शहर के अंदर, आज लोग एम्स की बात करते हैं, आप किसी भी शहर में आते हो, आप अपने शहर में जाइए, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल आज भी आपको मिलेगा। एक गरीब मुल्क ने हर शहर में अस्पताल बनाए और उसी गरीब मुल्क ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी बनाई। उसी गरीब मुल्क ने इंडिया के अंदर अपने वॉरशिप्स बनाए। उसी गरीब मुल्क ने अपनी मिसाइल्स बनाई। उसी गरीब मुल्क ने इस दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर पावर होना क्या होता है, स्पेस पावर क्या होना होता है। आज तो हम दुनिया के 5वें नंबर की ताकत बन गए, तब तो बहुत पीछे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने उस जमाने में, जब हम गरीब थे, एज अ नेशन हम गरीब थे, जब हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब हमारे यहां ट्रेन मैन पावर नहीं था, जब हमारे यहां लोग अनपढ़ थे, तब इस देश की फौज को मजबूत बना के दिखाया, जिसकी वजह से हम आजादी के बाद ना केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाए, हम सिक्किम को भी मिला पाए, हम गोवा को भी जीत पाए, हम हैदराबाद को भी जीत पाए, हम कश्मीर को भी बचा पाए और लगातार इस देश के अंदर हर तरह के टेररिज्म को भी हम हरा पाए। अकेला मुल्क है भारत जो डेमोक्रेटिक है, जिसने डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकवाद को खत्म किया। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की विरासत है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझते। इसलिए अनुराग ठाकुर जी, हम आएंगे तो देश को दोबारा मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से आपने आर्मी को कमजोर करने का षड्यंत्र इस देश में रचा, अग्निवीर योजना लाके भारत की आर्मी को आपने एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया जहां पे कि 4 साल की नौकरी है, जिसमें पूरी ट्रेनिंग भी नहीं होती है। हम वहां से भारत को वापस लाएंगे और एक मजबूत सेना, एक मजबूत न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक मजबूत अंतरिक्ष प्रोग्राम पे आगे तो ले जाएंगे ही। आज के जमाने में जो एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युद्ध है, वहां भी हम देश को सबसे ऊपर दुनिया में लेके जाएंगे। ये देश से हमारा वायदा है। एनी क्वेश्चन? आप తెలుగు చెప్పాలి క్వశ్చన్ కాంటెంట్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్. ప్రియమిత్రులకి వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం సిడబ్ల్యూసి పర్మనెంట్ ఇన్వైటీ అయిన గౌరవ గుర్దీప్ సప్పల్ గారు ఈ ప్రెస్ మీట్లో బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం రేపు కేంద్రంలో 400 సీట్లు ప్రమాదవశాత్తు రాగలిగితే ఏమి చేయబోతుంది అనేది మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగినది. ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ 1925లో ఏర్పడింది. వారి యొక్క ఐడియాలజీస్ అయిన గోల్వాల్కర్ కానీ, హెగ్డేవార్ కానీ, సావర్కర్ కానీ స్వతంత్రం వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ యొక్క వాసాలలో ఎక్కడ కూడా రేపు భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చినాక అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి అని ఎక్కడ చెప్పలేదు. వాళ్ళు మనువాది వ్యవస్థతోటి భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ ఉండాలి, అణచివేతలు ఉండాలనేది ప్రబోధించారు తప్ప ఎక్కడ చెప్పలేదనేది వారు మీకు వివరాలతో చెప్పినారు. వారి యొక్క స్పీచ్ పాయింట్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. 25 నుంచి 40 రాజ్యాంగం ఏర్పడక ముందు జరిగింది. భారత రాజ్యాంగం ఏర్పరిచినప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వాన నెహ్రూ గారు రాజ్యాంగం ఏర్పరిచినప్పుడు భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందనంటే అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి, కుల మతాలకి చదువుకి సంబంధం లేకుండా ఓటు హక్కు ఉండాలి, భావ స్వేచ్ఛ ఉండాలి, భావ ప్రకటన ఉండాలి అనే సమాన హక్కులను కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరిచినది. అనంత్ హెగ్డే అనే బీజేపీ పార్టీ ఎంపీ 5 సంవత్సరాల క్రితమే బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వానికి 2/3 మెజారిటీ పైన 400 సీట్లు గెలిస్తే
భారత రాజ్యాంగం తిరిగి రాయగలుగుతామని చెప్తూ వచ్చినారు. వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడే భారత రాజ్యాంగాన్ని పునఃపరిశీలించాలి, తిరిగి రాయాలని చెప్పిన దాన్ని అప్పుడున్న రాష్ట్రపతి వ్యతిరేకించినాడు. నిన్న మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడింది. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పదే చెప్తా ఉన్నాము, బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారు అబ్కి బార్ 400 పార్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే 400 సీట్లు వస్తే భారత రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తాడు, రద్దు చేసి కొత్త రాజ్యాంగం తీసుకురావాలని కుట్రపూరితంగా చేస్తా ఉన్నారు. రాజ్యాంగం ఎందుకు కావాలని కాంగ్రెస్ అడుగుతుందనంటే ఇదే భారత రాజ్యాంగం సమాన హక్కులు కల్పించడమే కాకుండా రిజర్వేషన్స్ కూడా కల్పించింది. 94లోనే పివి నరసింహారావు గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లో రిజర్వేషన్స్ 27% తీసుకురావడం జరిగినది. 2006లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 27% రిజర్వేషన్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐఐటి ఐఐఎంస్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగినది. సో రిజర్వేషన్స్ పాలసీనే అంటే ఇప్పుడు ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు గౌరవ సుప్రీంకోర్టు పూర్తి స్థాయిలో ట్రిపుల్ టెస్ట్ లాగా అంటే 3 పరీక్షలు నిర్వహించాలి, ఈ రిజర్వేషన్స్ యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరిందా లేక రిజర్వేషన్స్ తోటి అనుకున్న ఫలితాలు సాధించడమా లేక జనాభా కూడా ఉండాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినాక కూడా ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో బీజేపీ పార్టీ ఆ పని చేయలేదు. చేయకపోవడంతో మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్లో ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ లేకుండానే ఎన్నికలు నిర్వహించబడింది. పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి సవరణ తీసుకొచ్చి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు మహిళలకి ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం జరిగినది. దాంతో ఎంతో మంది దేశంలో మహిళలు ఓబీసీ బలైన వర్గాలకు కూడా స్థానిక సంస్థలలో నాయకత్వం పెంపొందించుకొని నిర్ణయా నేతలుగా ఎదగడానికి దోహదపడింది. సో బీజేపీ యొక్క సంకల్పం తెరచాటున మెల్లిమెల్లిగా రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేయాలని కుట్రపూరితంగా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు చూస్తే కనబడతా ఉంది. ఒకటి భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలి, రెండోది రద్దు చేసిన కొత్త రాజ్యాంగం తీసుకురావాలి, రెండోది రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేయాలి. కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఖర్గే గారు గిట్ట కోరుకుంటుంది ఎందుకు కులగణన జరగాలి, జనగణన జరగాలి, జనగణన కులగణన జరగాలి. సో జనగణన అనేది కాస్ట్ సెన్సస్ వస్తే దాంట్లో కులగణన వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఎంత జనాభా ఉంది మేమెంతో మనకు అంత అనేటట్టుగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తూ వచ్చినారు. సో జనాభా యొక్క అంటే దేశ సంపద దేశంలో ఉన్న 90% జనాభాకి అందేటట్టుగా జరగాలనంటే కాస్ట్ సెన్సస్ జరగాలి, జనగణనలో ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ ఉండాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అభిమతం. కాస్ట్ సెన్ససే లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి నరేంద్ర మోదీ గారు ఇప్పటిదాకా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలే, 2 కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి. కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు కేంద్రంలో అధికారానికి వస్తేనే వెంటనే 30 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా ప్రైవేట్ టెంపరీ ఉద్యోగాలు ఎత్తున్నాయో వాటి వ్యవస్థను రద్దు చేస్తూ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత, మిలిటరీలో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటామని చెప్తూ వచ్చింది. అతి పేద దేశంగా 1947లో స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 35 crores ఉన్న ఇండియన్ జనాభా ప్రపంచంలోనే అతి దిగువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, చదువులో కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం అవుతున్నప్పుడు అణుబాంబును తయారు చేసింది అప్పుడు పండిత్ నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు, తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు. ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత మిలిటరీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినది. దాంతోనే వాళ్ళ పాకిస్తాన్ లాగా కాకుండా భారతదేశం పటిష్టమైన దేశంగా ఎదగలిగినది, ఆర్థికంగా ఎదగలిగినది, అణు వ్యవస్థలో కూడా ముందున్నది. రాకెట్ లాంచింగ్ తోటి సౌర వ్యవస్థలో కూడా ముందున్నది, ఐటీ వ్యవస్థలో ముందు తీసుకొచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే జరిగినది. సో ఆఖరిగా వారు చెప్పింది ఒక సారాంశం ఏంటంటే కులగణన రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తాము, జనగణన జరిపిస్తాము, దేశంలో ఉన్న అట్టడుగు వర్గాలే కాకుండా అగ్రవర్ణాలు ఉన్న నిరుపేదలకు కూడా రిజర్వేషన్స్ కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు. 4% రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి ఇచ్చింది కూడా. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని కుల మతాలనికి అందరి కొరకు పనిచేస్తుంది.
90% ఉన్న జనాభాకి దేశ సంపదలో భాగస్వామ్యం ఉండాలి. అంతిమంగా ప్రజాస్వామ్యం పటిష్టత ఉన్నప్పుడే, ప్రతిపక్షం పటిష్ట ఉన్నప్పుడే డెమోక్రసీ విరజలుతూ పటిష్టం కొనసాగుతుంది. దాంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుంది ఈ బీజేపీ పార్టీ యొక్క, ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఆలోచన విధానం రాజ్యాంగం రద్దు, కుల వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి, రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేయాలని కుట్రపూరితంగానే 400 సీట్లు గెలవాలని కోరుకుంటున్నది. ఇది మీ ముందు ఉంచుతూ రేపటి వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో తెలంగాణలో కూడా అత్యధిక సీట్లు గెలిపించాలి. బీజేపీ కుట్రని భగ్నం చేస్తూ వాళ్ళు కోరుకుంటూ 400 ఇస్తే మాత్రం దేశం విచ్ఛిన్నం అవుతుంది, నిరుపేదనే ఉంటారనేది గౌరవ గుర్దీప్ సప్పల్ గారి యొక్క సారాంశం. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వారిని అడగవచ్చు. दिल्ली पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब सीएम श्री रेवंत रेड्डी जी ने दिया है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है और कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शन कमीशन से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं खुद कम से कम 5 या 6 बार इलेक्शन कमीशन में मिला हूं कांग्रेस की तरफ से। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आज जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री वो बातें भाषण में कह रहे हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। उन्होंने एक इमेजिनरी मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना लिया और पूरे देश में वो इमेजिनरी मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं। उस देश में किसी एक वीडियो के ऊपर अगर बीजेपी हाय तौबा बचाती है तो मुझे लगता है कि ये उनको अपना आईना में अपना चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज को लेकर प्रधानमंत्री के लेवल से नीचे तमाम लोग जो देश में बात कर रहे हैं वो केवल वीडियो तक सीमित नहीं है, वो तो मंच से लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो ABC चीज होगी जो कि हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप और हमारे तमाम कार्यकर्ता इस बात में बिल्कुल क्लियर हैं। हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अब आने वाले दिनों में हमारा मैनिफेस्टो पढ़कर उस मैनिफेस्टो में जो वायदे हैं उसकी जनता से चर्चा करें और बताएं कि उन वायदों के पक्ष में वो हैं तो क्यों है और अगर नहीं है तो उन वायदों के खिलाफ क्यों है, ये हम कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं जितनी जिसकी आबादी हो उसी के हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, हैदराबाद में 59% मुस्लिम है, सिकंदराबाद में 27 है, अगर जहीराबाद निजामाबाद की बात करें सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, वो भी डमी कैंडिडेट की दुनिया को पता है कि मतलब वहाँ जीत नहीं सकते। सर अल्टीमेटली वही काम जो बीजेपी मुस्लिमों को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहती है वही कांग्रेस से नहीं हो रहा। अगर बिहार की बात करते हैं और यूपी की बात करें, देखिए बीजेपी चुनाव जीत रही है मुस्लिम वर्ग को टारगेट करके, ये हम सब जानते हैं। इसी वजह से उनको बम्पर वोट पिछले 2 चुनाव में पड़ा। उनकी जो जबान है वो जहर फैलाती है, खाली मुस्लिम्स के खिलाफ ही नहीं दलित के खिलाफ भी फैलाती है, बहुत सारी जगह ट्राइबल्स के खिलाफ फैलाती है, किसानों के खिलाफ फैलाती है और जो भी डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स के फेवर में बोलता है उसके खिलाफ वो जहर फैलाते हैं। अगर हमको चुनाव जीतने के लिए कॉम्प्रोमाइज ही करना होता तो क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि राहुल गांधी या खरगे जी या कोई भी हमारे लीडर वही भाषा बोल के वोट ले सकते थे। लेकिन हमें जानते हुए भी कि वो भाषा बोलने से बीजेपी को वोट पड़ रहा है, हम उसके बावजूद अपने आदर्शों पे खड़े हैं। हम एक स्टैंड लेके चल रहे हैं देश के अंदर जिसका हमें कई जगह पे नुकसान होता है। जब हम कहते हैं सबको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, हमें नुकसान होता है। जब हम कहते हैं कि देश में शांति होनी चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, हमें नुकसान होता है पॉलिटिकल, पर हम उसके बावजूद नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो लड़ाई है इक्वालिटी की, ये कुछ टिकट कुछ इलेक्शन के अब आगे जा चुकी है, वो उस समय का टाइम नहीं है। आज तो बात संविधान की है। संविधान बचेगा तो सबको रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, संविधान बचेगा तो सबका राइट्स भी रहेगा, संविधान बचेगा तो सबके लोगों का जो पॉलिटिक्स में और जैसा हमने कहा अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिटिक्स समाज के जो हिस्सेदारी मिलनी है वो भी तभी मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी जी
आज भी कई बार नुकसान उठाकर भी वो व्यक्ति केवल एक बात कह रहा है, ये देश एक रखो, नफरत मत फैलाओ और सबको बराबर मानो। और बराबरी का जो 75 साल में सफर चला है, उस सफर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए अब बराबर हिस्सेदारी की बात भी वो कर रहे हैं।